Hey everyone, so in this video we are going to learn about the asynchronous JavaScript, how it works, callbacks, promises, asynchronous. So this will be the playlist of around 2 to 3 videos, and in this video we are going to learn about asynchronous JavaScript, how it works and what are the callbacks, how callbacks are used to create asynchronous JavaScript asynchronous. So in this video we are going to look, and by this end of this video you will learn the concept of the asynchronous JavaScript and callbacks. So let's start. Okay, so let's talk about the synchronous JS. See, JavaScript is by default synchronous and it's called the single-threaded language. Now what does this mean of single-threaded language is it has one call stack and one heap memory. तो अगर आपने लैंग्वेजेस करी लाइक C++ या जावा तो आपको पता होगी कि हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी क्या होती है. तो सिंक्रोनस का मतलब सिंपल ये है कि टास्क आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर वन एंड ओनली, आफ्टर वन अनदर. सोचो कि अगर कोई दो टास्क हैं तो जो टास्क नंबर 2 है वो रन जब तक नहीं करेगा जब तक टास्क नंबर 1 कंप्लीट नहीं होगा. तो पहले टास्क 1 को कंप्लीट होना जरूरी है जो कि उसके ऊपर है कोड के अंदर, और उसके बाद टास्क 2 कंप्लीट होगा. जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगा वो टास्क 2 नहीं रन होगा, नहीं उसको रेंडर करेगा जो भी होगा उस कोड को. तो दिस इज एसिंक्रोनस जेएस एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. उसमें एक ही थ्रेड होती है, पूरी एक ही थ्रेड के अंदर सारा वो वन बाय वन चलता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द asynchronous JavaScript, like what is asynchronous JavaScript, and we have learned about synchronous JavaScript. Now let's talk about the asynchronous JavaScript. So in asynchronous JavaScript जो दूसरा टास्क है वो वेट नहीं करेगा पहले वाले टास्क का, राइट? एज सिंपल एज दैट. पहला वाला टास्क एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ उस टास्क को कोई मतलब नहीं है. अगर उस टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट होना है तो वो टास्क 1 का वेट नहीं करेगा, वो अपना टास्क 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये टास्क 2 टास्क 1 से पहले भी एग्जीक्यूट हो सकता है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको टास्क 1 के लिए रुकना पड़ेगा, जैसे हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में करते थे कि उसको टास्क 2 को टास्क 1 के लिए रुकना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. टास्क 2 अपना ही कंपाइल होगा, अपना ही रन होगा, उसको टास्क 1 के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. सो दिस इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की ये होगी कि व्हेन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड you can switch to different tasks without waiting for previous ones to be completed. It's as simple as that definition. So this is the main difference between asynchronous JavaScript and synchronous JavaScript. Now when we write code in JS, it's synchronous, right? But now there are different methods to make our synchronous JavaScript asynchronous JavaScript. And these methods are like callbacks, promises, async, await. So in this video, we are going to learn about callbacks, right? In next video, we will see what are promises and why they are introduced, and then in third video we will learn about async and await. So next screen जो भी आएगी उसमें हम VS Code में देखेंगे अपना. I will first tell you how synchronous code looks like, then I will tell you about the problems, and then I will tell you about what are callbacks and why they make our code asynchronous. Okay, so right now I'm in the VS Code and अभी हम JavaScript की फाइल में हैं. So now let's understand the code. What is synchronous code? So जो कोड अभी सामने लिखा हुआ है वो एक synchronous कोड है, एक सिंगल थ्रेडेड कोड है, और इसको हम समझते हैं. पहले लिखा हुआ है console.log start. फिर हमने दो फंक्शन बनाए हैं display1, display2, जिसमें हमने console.log फर्स्ट करा है, console.log सेकेंड करा है, और फिर हमने इन दोनों फंक्शन को कॉल करा है. Now अगर हम इसको रन करें तो how it will look in browser. As you can see in console it says start, first and second. So this is the meaning of synchronous code. Whatever comes first will execute first. तो यहाँ पर सबसे पहले start आया है, फिर हमने display1 फंक्शन कॉल करा है, और फिर हमने display2 फंक्शन कॉल करा है. Now to understand synchronous code more perfectly, हमने अब की बार display2 फंक्शन को display1 फंक्शन से कॉल करा है. तो पिछली बार जो आउटपुट आया था वो आया था start, first, second, बट जो अब की बार आउटपुट आएगा कंसोल में वो आएगा start, second and first. लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल में पहले स्टार्ट आया है, फिर सेकंड आया, फिर फर्स्ट आया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस कोड. वट एवर कम्स फर्स्ट इट विल रन फर्स्ट. और display1 फंक्शन जब तक रन नहीं होगा जब तक display2 फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस कोड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉलबैक्स. सो कॉलबैक एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता है हमारे दूसरे फंक्शन के अंदर. सो लेट्स सी हियर व्हाट वी हैव डन. हमने एक फंक्शन बनाया है सम, उसमें हमने तीन आर्ग्यूमेंट पास करे हैं 5, और हमने एक फंक्शन की तरह एक आर्ग्यूमेंट पास करा है डिस्प्ले सम.
और हमने इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन भी करा है कि इस फंक्शन पे क्या होगा, लेकिन हमने इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा है अपने मेन फंक्शन सम में। तो हमने फंक्शन को कॉल करा है, फिर हमने फंक्शन सम ए बी कॉल बैक जो कि हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा है डिस्प्ले सम को, और हमने रिजल्ट को इस डिस्प्ले वाले सम में जो कि हमने कॉल बैक बोला है इसको हमने पास करा है। और फिर हम इस फंक्शन पे गए हैं और हमने console.log आउटपुट करा है जो भी रिजल्ट होगा हमारा। सो जो मेन कंसेप्ट है कॉल बैक फंक्शंस का वो ये है कि द कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन एक फंक्शन है जो कि पास हुआ है फंक्शन सम के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। जैसे ए और बी एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं वेरिएबल्स की तरह, ऐसी कॉल बैक एज अ फंक्शन पास हुआ है एज अ फंक्शन की तरह। सो अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट आना चाहिए 10। एज यू कैन सी आउटपुट आ रहा है 10। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉल बैक। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिंक्रोनस कोड एंड व्हाट आर कॉल बैक्स। नाउ हाउ कॉल बैक्स आर यूज्ड टू मेक अ सिंक्रोनस कोड एसिंक्रोनस, कि हम कॉल बैक्स को कैसे यूज करें अपने सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस बनाने में। एसिंक्रोनस मीन कि किसी और फंक्शन का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है किसी और फंक्शन को रन करने के लिए। तो अभी हमने कॉल बैक का मतलब पढ़ा है कि फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता है टू अ डिफरेंट फंक्शन। नाउ हम यूज़ करते हैं इसको अपने JS कोड को एसिंक्रोनस बनाने के लिए। सो हमने console.log फर्स्ट करा है, हमने दो फंक्शन बनाए हैं सेकंड और थर्ड। अब हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करा है। नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सेट टाइम आउट, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, ऊपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेट टाइम आउट इन सिंपल टर्म्स, सेट टाइम आउट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि रन करता है फंक्शन को आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। सो अगर आप देखें तो एक कॉल बैक फंक्शन है क्योंकि सेट टाइम आउट एक खुद एक फंक्शन है और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं सेकंड एज अ आर्ग्यूमेंट जो कि एक फंक्शन की तरह हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, और फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं 2 सेकंड के बाद। इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, पहले फर्स्ट कॉल होगा, उसके बाद थर्ड कॉल होगा क्योंकि हमने थर्ड कॉल करा है, और जब तक 2 सेकंड नहीं हो जाते 2 सेकंड के बाद हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट? आउटपुट शुड बी फर्स्ट, थर्ड एंड आफ्टर 2 seconds it will run second. So let's see the output, and after 2 seconds is say second. So this is the how callbacks are used to make our synchronous code asynchronous. So ये एक asynchronous कोड है। हमने कॉल करा है पहले यहाँ पे सेकेंड फंक्शन, लेकिन वो एक्चुअली में आउटपुट दिखा रहा है थर्ड फंक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि हमने सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करा है, और सेट टाइम आउट फंक्शन एक फंक्शन लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट और उतने टाइम पीरियड के बाद वो उसको रन करता है। तो बेसिकली इट्स एन कॉल बैक फंक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड what are the callbacks, what are the asynchronous code, synchronous code. So thank you as always for watching this video. If you like this video, do like it, share it, subscribe to the channel. And in next video, we are going to look what is callback here and how to resolve it using promises. So it will be an interesting video. So till then, goodbye, have a good day.